نام کا کرتا ہے وظیفہ زہرا، آپ کے نام کا کرتا ہے وظیفہ زہرا، دین کو چاہیے شبیر کا صدقہ زہرا، آپ کی شان میں ہر لفظ ہے چھوٹا زہرا، اور اس پر میں خدا کہہ نہیں سکتا زہرا، طول اور عرض بتاتا ہے یہ کنزن مخفی، تیری چادر کے برابر ہے معلا زہرا، ایک طرف باپ تھا اور ایک طرف شوہر تھا، آپ سے کب رہا معراج میں پردہ زہرا، آسمانوں پہ ہے سلمان محمد جیسا، تیری دہلیز پہ اترا تھا جو تارا زہرا، کیا خبر عرش پہ چادر تطہیر میں تھی، کیا خبر عرش پہ یا چادر تطہیر میں تھی، پہلا جب سجدہ کیا تو نے خدا کو زہرا، لوح محفوظ کو محفوظ رکھا ہے جس نے، وہ علی تیری حفاظت میں ہے رہتا زہرا، آپ تو آپ ہیں فضا کی وہ عزت سمجھے، ذہن انسان یہاں تک نہیں پہنچا زہرا، آپ نے سر پہ اسے اوڑھ کے عزت بخشی، سر ہوا چادر تطہیر کا اونچا زہرا، فاطر ارض و سماوات ہے تسبیح بطول، فاطر ارض و سماوات ہے تسبیح بطول، اور اللہ کی تسبیح ہے زہرا زہرا، ایک جگہ روک کے جبریل کو خالق بولا، اس سے آگے کا علاقہ ہے تمہارا زہرا، ایک سے ایک لقب ایک سے ایک شان تیری، فاطمہ حورا بطول ام ابیہا زہرا، عرش کے تاج سے لے کر ہے زمین کی تہ تک، ایک فقط آپ کی اولاد کا شجرہ زہرا، اور ایک اور بیان ہوتا ہے، اللہ کا حجاب ردائے بطول ہے، اللہ کا حجاب ردائے بطول ہے، انوار کا سحاب ردائے بطول ہے، عصمت کا انتخاب ردائے بطول ہے، شان ابو تراب ردائے بطول ہے، نور احد ہے گنبد تنویر کے تلے، آل عبا ہے چادر تطہیر کے لیے، زیر کسا ہے آل محمد کا آستان، روشن جہاں ہے طور کے جلوے کی بجلیاں، زیر کسا حقیقت کبریٰ کے جاویداں، مہر و نجوم ایک ہیں مانند کہکشاں، مصدر تمام نور کا خیر النساء ہوئیں، ذات بطول مرکز بزم کسا ہوئیں، وحدت ردائے بنت رسول خدا سے ہے، ذات نبی در اصل فقط سیدہ سے ہے، ہستی علی کی ملکہ شرم و حیا سے ہے، اظہار اس کا عالم زیر کسا سے ہے، حیدر سے لے کے مہدی دوران تک اس میں ہے، اصغر سے لے کے حضرت یزداں تک اس میں ہے، اوہام سے بعید کسا کا نظام ہے، سدرہ منتہا سے پرے کا مقام ہے، آل نبی کی عظمت و رفعت کا نام ہے، جن پر ازل سے اب کا درود و سلام ہے، راز ازل پہ پردہ توحید ہے ردا، گویا صحاب برزخ خورشید ہے ردا، ناموس مصطفیٰ کی تقدیر ہے کسا، ہاں غیرت علی کی تصویر ہے کسا، اور آبرو شبر و شبیر ہے کسا، آل نبی کی عزت و توقیر ہے کسا، حورا ہے فدیہ چادر بنت رسول کا، حوا ہے فدیہ چادر بنت رسول کا، صدقہ ہے حسن عصمت مریم بطول کا،
ولائے آل محمد کی ردا اوڑھ کے چل، چراغ عشق جلا اور ہوا اوڑھ کے چل، ردائے فاطمہ زہرا کی عطا اوڑھ کے چل، غموں کی دھوپ میں تو شال عزا اوڑھ کے چل، تجھے وہ حور کی طرح بے مثال کر دیں گے، مگر یہ شرط ہے زہرا کی دعا اوڑھ کے چل، فدائی بن کے شہیدی کا تو سرے مقتل میں، فدائی بن کے شہیدی کا تو سرے مقتل، جو باز گشت ہے حل من کی صدا اوڑھ کے چل، لہو میں اپنے نہا کر بنام خون حسین، حرم میں آج رسالت کا صلہ اوڑھ کے چل، فرشتے راہ میں پلکیں تیری بچھا دیں گے، تو ان کی سمت بھی خاک شفا اوڑھ کے چل، تیرے لیے ہی بنائے گئے ہیں دار و رسن، اگر ہے عشق علی دل میں قضا اوڑھ کے چل، دیا ہے اذن حضوری اگر محمد نے، نبی کے شہر میں حیدر کی ولا اوڑھ کے چل، جو چاہتا ہے کہ مشتاق ہو تیری جنت، تو سر سے پاؤں تلک کرب بلا اوڑھ کے چل، ہے بے وفا یہ زمانہ تو اس زمانے میں، اٹھا کے پرچم عباس وفا اوڑھ کے چل، یہ حادثوں کا شہر ہے خیال کر واحد، ردائے ناد علی بہر خدا اوڑھ کے چل، ردائے ناد علی بہر خدا اوڑھ کے چل۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قمر العشيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमअरिफ़तिज़ ज़हरा व अजला उयूनना बिबुकाइ अलज़ ज़हरा। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अबी ज़हरा व अला बअलि ज़हरा व अला अबनाइ ज़हरा व अला बनाति ज़हरा व अला शीअति ज़हरा व अला मुहिब्बि ज़हरा व क़ाला इलाहु ज़हरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद मुताल आपको करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं हम आपकी खिदमत में रोज़ाना करबला मुक़द्दसा से मोहब्बतों का प्याम, अमन का पैगाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत का पैगाम लेकर आते हैं। और ये मोहब्बत, इश्क, प्यार ये हमारा सब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत है। और इस मोहब्बत को हम दिल में जगह देने के लिए करबला से तवस्सुल करते हैं। करबला वो अल्लाह तबारक व तआला का सीधा रास्ता है जिस रास्ते के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को हायल होने ही नहीं दिया। करबला खुद राह मुस्तकीम है। करबला खुद अपनी ज़ात के अंदर हमें अपना हक पहुँचाने वाली है। करबला मुक़द्दसा हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम इस तरीके से पहुँचाती है कि हम खुद दंग रह जाते हैं, क्योंकि करबला खुद एक नूर का मरकज़ है, क्योंकि इसके दामन के अंदर नूर पैवस्त हो गया है। इसीलिए अय्यामे रजब आने वाले हैं, पहली शब लग गई है। इसी एतबार से कल रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख होगी। जब करबला मुक़द्दसा के अंदर ये कल रजब की पहली तारीख होगी तो इसमें चंद आमाल हैं। अव्वल तो ये कि ये महीना रजबुल मुरज्जब का रजबुल असब कहलाता है। असब यानी एक सबन सब्बा के बारे में जिस तरीके से कहा जाता है, यानी एक मर्तबा उंडेल देने के माने में। एक मर्तबा जब उंडेल दिया जाता है तो ये उंडेल दिया जाना एक मुश्त होता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये रहमतें उंडेली जाती हैं, इसलिए इसे रजबुल असब भी कहा गया है। और इस रजबुल असब के पहले दिन के बारे में जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये है कि इसे कहा गया यौम गुफैला भी कहा गया, यौमुल गुफैला भी कहा गया। गुफैला गफलत से है, गफलत लापरवाही यानी ध्यान न देना, तवज्जो ना करने के माने में होती है। क्यों कहा गया इसे यौमुल गुफैला? अक्सर लोग तो पहली तारीखों का इंतज़ार करते हैं, उनके हज़ारों उमूर मरबूत होते हैं इससे, तो लिहाजा इसे यौमुल गुफैला क्यों कहा गया है? जब इसे यौमुल गुफैला कहा गया है तो इसे यौमुल गुफैला कहने के लिए सबब है। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिअन्ना गफलन नास अन फज़्ल ज़ियारतिल हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि लोग इस दिन के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से गाफिल हैं। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम करबला में हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ही अर्ज़ कर रहे हैं। तो ये जो गफलत है इसे क्यों कहा गया? क्योंकि हालांकि इतने लोग आए हुए हैं, यकीन जानिए रजब का चांद नज़र आने के मौसम के अंदर करबला मुक़द्दसा में जिस तरह शब जुम्मा में एक रश होता है लोगों का, जमीयत उसी तरीके से जमा हो गई है। करबला मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रहमतें देना चाहता है, इसलिए कहा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पहली तारीख को बहुत ही मुस्तहब है। इसी वजह से मुख्तलिफ जगहों से लोग छुट्टी करके भी कोशिश करते हैं कि करबला मुक़द्दसा में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके जाएं। इसी तरीके से 15 रजब को भी और शब जुम्मा, जिस तरीके से आप जानते हैं काफ़ी सारे मवारिद हैं जिनके अंदर हर खुशी हर खूबी के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को अहमियत दी गई है। और ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अहमियत दिया जाना अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमारे लिए बख्शिश का सामान मयस्सर करना है। इसी वजह से रजबुल मुरज्जब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौक़ियत अता फरमाई है, ये कैफियत अता फरमाई है, कहा कि रजब के अंदर ज़ियारत की जाए। अच्छा, रजब के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से पहली रजब को इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है, इसी तरीके से इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की आमद का दिन भी है, 5 को शहादत का दिन भी है। इसी तरीके से मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को काबा को इबादत गाह बनाने का दिन भी है। और इसी तरीके से इमाम अली अलैहिस्सलाम 15 रजब को काबे से बाहर जो
तशरीफ़ लाए हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खुशामदीद कहने के लिए गए हैं, खैर मकदम करने के लिए गए हैं। इसी तरीके से बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की भी हमारे यहाँ शहादत 15 रजब के एतबार से मनाई जाती है और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन भी है। इसी तरीके से 25 रजब को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन भी है। 28 रजब को जिस तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मदीना से रुखसती, जिसे अलविदा कह देते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के लिए आने लगे तो 28 रजब को वो भी है। और इसी तरीके से रजबुल मुरज्जब के अंदर ही अहले बैत रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेब अबी तालिब अलैहिस्सलाम से बाहर निकलने का दिन भी वही है। इसी एतबार से इस रजबुल मुरज्जब के अंदर एक और दिन भी है जो जनाब इब्राहीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद थे, उनकी विशाल का दिन भी इसी के अंदर है। और इसी तरीके से तामीर किबला भी है। इसी तरीके से हबशा के अंदर मुसलमानों की हिजरत का दिन भी इसी रजबुल मुरज्जब के अंदर है। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रजबुल मुरज्जब में खैबर को भी फतह किया था इसी एतबार से। और ग़ज़वा नखला भी इसी मौसम के अंदर हुआ था। खैबर का दर जो उखाड़ा है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसी में उखाड़ा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पहला खुतबा जो मस्जिद कूफा में अपनी ज़ाहिरी हुकूमत के दौरान आकर दिया वो भी कूफा के अंदर इसी रजबुल मुरज्जब के अंदर था। और इसी महीने के अंदर खुदावंद मुतआल ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर काफ़ी करामात की हैं। इन करामात में से एक तो हमारे लिए यही है कि जो शख्स भी ज़रिहात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में हो उसे चाहिए कि ज़ियारत रजबिया पढ़े। ज़ियारत रजबिया एक बहुत ही प्यारी सी ज़ियारत है जो माह रजब के अंदर पढ़ी जाती है। जो शख्स भी ज़ियारत करे मासूम अलैहिस्सलाम की उसके लिए उसे चाहिए कि वो ज़ियारत रजबिया मासूम अलैहिस्सलाम के हरम में पढ़े। और ये उसका रजब में पढ़ना ज़ियारत का मासूम अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर उसको एक खसूसी करामत अता फरमाता है। वैसे एक मज़ा सा है इस ज़ियारत के अंदर, साल भर रजब का एक इंतज़ार सा रहता है कि इस ज़ियारत को पढ़ा जाए क्योंकि इसके अंदर भी एक काफ़ी सारी बातें पिनहान हैं। इसी एतबार से इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि क्योंकि दुआओं का महीना है इसके अंदर हमें करना चाहिए कि मन दअल्लाहु बिना अफलहा, जिसने अल्लाह को पुकारा हमारे वसीले से अफलहा वो फलाह पा गया। ममन दाअहु बिगैरिना हलका व इस्तहलका, जिसने हमारे गैर के ज़रिए से अल्लाह को पुकारा उसने हलाकत तलब की और वह हलाक हो गया। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अपने दिल में जगह दे के, अपनी ज़बानों पे विर्द बना के, अपनी फ़िक्रों में सजा के, तवस्सुल बना के, किरदार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का अपना के हमें चाहिए दुआ करें अल्लाह से, ए अल्लाह हमें हर आफत से महफूज फरमा। इसी एतबार से इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का एक और फरमान भी, क्योंकि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की कल आमद का दिन है, बाकी फ़ज़ाइल मैं कल पढ़ूंगा, आज मुख्तसरन थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन जाबिर अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम, जाबिर अबी जाफ़र जो कहा जाता है ना इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम है इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वालिद साहब हैं। कहा कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं इमाम अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से क्या कहते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन यशकूना फ़ीहि रब्बहुम, एक ज़माना आएगा लोगों के ऊपर अपने अल्लाह का शिकवा करेंगे। कुल तो मैंने कहा वकैफ़ा यशकूना फ़ीहि रब्बहुम, वो किस तरीके से इस ज़माने के अंदर अपने रब का शिकवा करेंगे। काला यकूल रजुल, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदमी कहेगा वल्लाह अल्लाह की कसम मारा बेहद शेन मुंज़ कज़ा व कज़ा, अल्लाह की कसम मैंने एक मुद्दत हो गई फलान ज़माने से कोई फ़ायदा ही नहीं कमाया। वला अकुलन वला आकुलो वला अशरबो, ना मैं खाता हूँ ना मैं पीता हूँ, इल्ला मिन रास माली, मगर यह कि अपने माल से खाता हूँ। फिर फरमाया वाय हक, अफसोस है, हल असल माला का सिरवत हूँ इल्ला मिन रब्बिक, क्या तेरा माल और तेरी सरवत जो है क्या अल्लाह के अलावा कहीं और से आती है जो तू कहता है कि मैं अपने माल से खाता हूँ। यानी मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर इस माल को अपनी तरफ निस्बत देकर कहना कि मैं अपनी तरफ से खाता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा
माह रजब के अंदर काफ़ी सारे आमाल हैं जिनके अंदर से ज़ियारतें हैं, सुबह शाम के अज़कार हैं, इस्तिग़फ़ार है, मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। मैं ये आमाल पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आपके घरों में किताबें हैं, सिर्फ मुतवज्जे करने के लिए, मुतनब्बे करने के लिए मैं आपसे कहूँगा 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अतूबु इलैह 100 मरतबा पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मिन जमीइ ज़ुनूब वल आसाम, ये 1000 मरतबा पढ़ना है। और इसी तरीके से रोज़ा भी रखने की बड़ी फजीलत है। और मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने इस्तिग़फ़ार का माना पूछा तो मासूम अलैहिस्सलाम के सामने जो उसने कहा तो मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्तग़फ़िरुल्लाह सकिलत का उम्मुक, तेरी माँ तेरे गम के अंदर रोए। अतदरी मल इस्तिग़फ़ार, तू जानता है इस्तिग़फ़ार क्या होती है? अल इस्तिग़फ़ार दरजतुल इल्लियीन, इस्तिग़फ़ार अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना ये इल्लियीन का दर्जा है। वह हुआ इस्मुन वाक़िउन अला सित्तति मानिन, ये एक इसम है लेकिन इसमें 6 माने। क्या? अव्वल हुआ अन्नदमु अला ममदा, जो गुजर गया है उसके ऊपर नदामत करना। वसानी अल अज़्मु अला तर्किल औद इलैहि अबदा, और जो कर चुका है गुनाह वगैरह बुरी बात कर चुका है उसको अबदन ना करने का अज़्म कर लेना। वसालिसु अन तुअद्दी इलल मख़लूक़ीना हुकूकहुम हत्ता तल्क़ल्लाहु अमला लैसा अलैका तबिअतुन, कहा कि जो तूने लोगों के हुकूक रखे हैं जब तू अल्लाह से मुलाकात करे तो तेरे गर्दन के ऊपर कोई सी ना बचे, लोगों के हुकूक अदा करे। वर्राब अन तामिद इला कुल्ल फरीदतिन अलैका ज़य्यअतहा फतुअद्दी हक़्क़हा, और चौथी ये कि जो तूने हुकूक अल्लाह ताला के वाजिबात जो तूने तर्क किए उनको अदा कर दे। वल खामिस अन तामिदा इलल लहमिल लज़ी नबता अला सुहते फतुदीबहु बिल अहज़ान हत्ता यल्सिकल जिल्दा बिल अज़्म व युनशअ बैनहुमा लहमुन जदीद। फरमाया कि 5वां माना ये है इस इस्तिग़फ़ार का कि तू अपने गोश्त को पिघला के रख दे, अल्लाह की इबादत के अंदर रोज़े रख, इस्तिग़फ़ार कर, तौबा कर, गिरिया कर, बुका कर, ताकि तू अल्लाह से जब मिले तो तेरे जिस्म के अंदर और इसे इतना अपने ऊपर यानी ज़हमत अपने ऊपर सऊबत करे कि वह जो हराम की वजह से गोश्त उगा उसे पिघला के रख दे। इसलिए कहा वसादिस अंतुज़ीकल जिस्म अला मताअति कमा अज़क़तहु हलावतल मासिया फ़इंदा ज़ालिका तक़ूल अस्तग़फ़िरुल्लाह। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस तरीके से तूने अपने बदन को लज्जत मासियत पहुँचाई थी उसी तरीके से अगर तू पहुँचा लेता है अपने जिस्म को और नाराहती और इसी तरीके से तंगी तो फिर तू समझ ले कि तूने अपने आप को इस काबिल कर लिया है कि तू कह सके अस्तग़फ़िरुल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बारे में फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम लिल्लाहि व फ़िल्लाहि लम यसअलुल्लाह तआला हाजतन मिन हवाइजुद दुनिया वल आखिरा इल्ला आताहु। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अल्लाह के लिए करेगा, अगर वो अल्लाह के लिए ज़ियारत करता है तो वो अल्लाह से मांगेगा नहीं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर बहुत ही मकबूल अमल है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हम आपकी तरफ से यहाँ पर नाइबु ज़ियारा हैं, आपके लिए ज़ियारत करते हैं और आपके लिए आमादा हैं। लिहाजा आप लोग जानते हैं हम आप लोगों के रोज़ाना प्याम पढ़ते हैं यहाँ पे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में। लिहाजा आप अपने प्याम भेजा कीजिए ताकि हम आपके प्याम पढ़ सकें। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नमरूद में इश्क ज़ेर खंजर भी रहा सजदाए माबूद में इश्क चलता है दहकते हुए अंगारों पर, इश्क खुद मौत रकम करता है तलवारों पर। इश्क की आग में नमरूद झुलस जाते हैं, खाक हो जाते हैं जो इश्क से टकराते हैं। हार गए सब तीरों खंजर, इश्क़ हैदर जीत गया, जीत गया। इश्क़ हैदर जीत गया, इश्क़ हैदर जीत गया, इश्क़ हैदर जीत गया, इश्क़ हैदर जीत गया। वाहर क्या सरदारी है, शाही हमेशा हारी है। तख्त शही का हो गया, तख्त का ज़िक्र अली का जारी है।
बिस्म रब्बिल हुसैन अलैहिस्सलाम। सलाम हो मेरे पालनहार मौला, सलाम हो मेरे प्यारे मौला। मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुझे दावत कीजिए कि मैं करबला आ जाऊं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, मेरे प्यारे मौला, आपको जनाबे सकीना अलैहिस्सलाम का वास्ता। मौला मैं 15 साल हो गए हैं दुआ मांग रही हूँ ज़ियारत की तो सआदत और तौफीक की। मेरे प्यारे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बहुत ज़्यादा दुआ की है लेकिन अभी तक करबला की ज़ियारत मेरे नसीब में नहीं लिखी गई। मेरे मौला हुसैन, आपको बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, आपको मौला अली अलैहिस्सलाम के दुखों का वास्ता, मुझे करबला की ज़ियारत नसीब फरमाइए। मेरे प्यारे मौला, आपको सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता। मौला मैं एक जवान साला खातून हूँ, आप जानते हैं जवानों के जज्बात अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए कितने शदीद होते हैं। मौला हुज्जत खुदा का ज़हूर अता फरमाइए और जुमला मोमिनीन व मोमिनात को आफात दीन और दुनिया से महफूज फरमाइए। मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए। एक और मोमिन लिखते हैं, मौला या बाबल हवाइज अलैहिस्सलाम, मेरा दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा तंग हो गया है। मेरे जी चाहता है मैं आपकी ज़ियारत के लिए आऊँ, आपके इर्द गिर्द, आपके रोज़े के इर्द गिर्द तवाफ़ करूँ, सलाम करूँ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला मेरी तमाम गिरफ़्तारियाँ, मेरी तमाम तकलीफ़ें, मेरे तमाम मरज़ और जो भी मेरी परेशानी है, मौला आपको सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता है, दूर फरमाइए। हम सब की मुश्किलों को हल फरमाइए। मौला मैं दो मेरे बच्चे हैं, एक का नाम अबुल फ़ज़ल है और दूसरे का नाम रज़ा है। मौला आपको सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, दुआ मेरी यही है कि वो कभी भी मरीज़ ना हो। मौला उन्हें सेहत दे दीजिए। मौला आपके हुजूर में अपने बच्चों को आपके हुजूर पेश करती हूँ। मौला अब्बास, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हम सब को करबला का रिज़्क़ नसीब फरमाइए। मौला मेरा शौहर बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग रखता है। मौला मेरी मदद कीजिए। आपको अल्लाह का वास्ता, मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को आपस में खुशी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाइए। मौला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। मौला खुदाया मेरी दुआ कबूल फरमाइए। मौला मैं चाहता हूँ शादी करूँ। मौला मैं बहुत ही ज़्यादा दुनियावी परेशानियों में मुब्तला हूँ। मैं 30 साल से ज़्यादा का हो गया हूँ। मौला मेरे घरेलू परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मौला हम शिया यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम को जो भी हमारी परेशानियाँ हैं दूर फरमाइए और हमारे उमूर की इस्लाह फरमाइए। मौला आप हम पर निगाह करते हैं। मौला मैं जानता हूँ आप निगाह करते हैं, लेकिन हमारे गुनाहों का सबब है कि हम पर आपकी रहमत नहीं पहुँच सकती। मौला मैं करबला आना चाहता हूँ, करबला की ज़ियारत नसीब फरमाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।